Hello, third standard. We have to learn EVS 1 and lesson number 4. And name of the lesson is Directions and Maps. Now look in the picture. Here is the picture of the students, and they are just standing in the classroom before blackboard. Now this is the activity in fact given to you, and you have to solve it. You will find it is an interesting quiz like activity. See that what is there. Look here, it is to be done by you. See, stand in two equal rows in the classroom facing each other. Now tell the girl or boy standing in front of you the answers to the following questions. Now look here, what you need to do, you have to stand. It is activity in fact. You have to stand in the classroom facing each other. एक दूसरे के सामने खड़ा होना है तुम लोगों को, और ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है इनके आंसर्स एक दूसरे को बताने का है. Why is this so? You will get to know later on. First question: on which side of you is the blackboard? First question is that तुम्हारे कौन से साइड में ब्लैकबोर्ड है. ओके. नंबर 2, on which side of you is the main door of the classroom? So you know, another question is that तुम्हारे कौन से साइड में क्लासरूम का मेन डोर है. ओके. थर्ड क्वेश्चन: ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द टीचर्स टेबल? और तुम्हारे कौन से साइड में टीचर का टेबल है. नाउ लुक, दीज आर 3 क्वेश्चंस. नो व्हाट विल यू सी, यू नो, दिस एंड इंटरेस्टिंग. योर आंसर्स एंड द आंसर्स ऑफ दैट गर्ल और बॉय इन फ्रंट ऑफ यू आर डिफरेंट, aren't they? And why is it so? If the blackboard is to your right, it will be to the left. Of the girl or boy standing in front of you. And if the blackboard is behind you, it will be in front of the girl or boy facing you. Now look here, what is an interesting factor in this activity, because when you face each other, that row, okay, 5 or 10 or 11 students are standing facing each other, एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि ये मेन डोर किधर है, ब्लैक बोर्ड किधर है. समझो भी ब्लैक बोर्ड तुम्हारे पीछे है. ओके. तो वो तुम तो उसको बोलेंगे कि इट विल बी है बिहाइंड अस, बट द बॉय और गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, उनका आंसर क्या रहेगा तुम्हारे सामने खड़े बॉय और गर्ल का, कि वो तुम्हारे उनके सामने है. सी दैट इफ द टेबल, टीचर्स टेबल इज टू योर राइट साइड, बट द साइड ऑफ द girl or boy standing in front of you will be the right, left. देखो अभी तुम्हारे राइट साइड में तुम्हारा टेबल है, टीचर्स का टेबल है तुम्हारा राइट साइड में, तो तुम्हारा आंसर है राइट साइड. लेकिन यही जो तुम्हारे सामने खड़े हैं गर्ल और बॉय, उनका आंसर क्या रहेगा, लेफ्ट साइड. इस तरह से, क्योंकि वो जब तुम एक दूसरे के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा डायरेक्शन बदल जाता है. ओके. दैट्स वाई द आंसर्स आर डिफरेंट. इन द सेम वे, your answer about the main door and the teacher's table will also be different from those of the girl or boy facing you. It is difficult to actually make out the location of any object on object based on answers like on the right, on the left, in front of and behind. Therefore, in order to tell exactly where an object is located, we use directions. Now look, these answers given by the students here, those who are facing each other, are actually based on the direction what they use
उन्होंने क्या यूज़ किया है बताने के लिए कि ब्लैक बोर्ड किधर है, तो वो बोलते हैं कि इन फ्रंट ऑफ अस, यानी हमारे सामने है। लेकिन जो उनकी फेसिंग कर रहे हैं वो बोलेंगे कि इट इज़ बिहाइंड अस, ओके, हमारे पीछे है। तो ये जो डायरेक्शन है लेफ़्ट और राइट और बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ, ये डायरेक्शंस आर नॉट करेक्ट इन फैक्ट, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होता है। तो राइट डायरेक्शंस कौन से हैं? हम राइट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं फिर? दैट ईस्ट, वेस्ट, right, north, south, these are the right direction. Now how are they used? For now look here, another activity is given. You can see the picture. The teacher is standing and those students are standing in front of the teacher facing each other. See that now. This another activity to be done. What is that activity? Look here. Now we will use directions to find the answers to the same questions with your teacher's help. Write the names of the 4 main directions on the walls of your classroom. Now stand facing each other. Again, tell each other the direction in which the blackboard, main door and teacher's table are located. Now see that now. What happens? Again you have to stand facing each other. इस बार भी तुमको एक दूसरे के आमने सामने खड़े होना है, लेकिन इस बार क्या करने का है कि तुमको इन फ्रंट ऑफ यू एंड बिहाइंड मी लाइक और राइट और लेफ्ट, ये डायरेक्शन के बजाय जो डायरेक्शंस वॉल पर लिखे होते हैं, राइट, डायरेक्शन वाइज वो लिखे होते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, लाइक दैट, उनका यूज़ करने का है। तो क्या करेंगे? नाउ यू आंसर एंड द आंसर्स ऑफ द गर्ल बॉय फेसिंग यू विल बी द सेम. डायरेक्शंस कैन बी यूज टू टेल एग्जैक्टली वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड. अभी तुम्हारे जो आमने सामने तुम जो खड़े, तुम्हारे दोनों के आंसर सेम रहेंगे. वाई इज दिस सो? क्योंकि डायरेक्शन इज सेम. विद हाउ आर दे फेसिंग, व्हाट आर यू फेसिंग, इट डजेंट मैटर. तुम क्या फेस कर रहे हो और तुम्हारे पीछे क्या है और आजू बाजू क्या है, इट डज नॉट मैटर. व्हाट डज द मैटर? द डायरेक्शन मैटर्स. सबसे पहली बात है कि डायरेक्शन इधर इम्पोर्टेंट है, ना कि तुम्हारा साइड और योर ओन डायरेक्शन. करेक्ट नो? तो जो डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शंस यूजफुल है. नाउ लुक हियर, लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन. नाउ अब ये डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है. सी हियर नाउ इन द पिक्चर यू कैन सी दैट द बॉय इज स्टैंडिंग एंड ही इज पॉइंटिंग आउट द फिंगर एट द सन which is actually rising. The rising sun, actually you know very well in which direction the sun rises. It is the east. तो जिधर से सन का सनराइज होता है वो साइड ईस्ट होती है, तो इसमें दिखाया गया है अभी देखो. और उसके सामने की अपोजिट टू द ईस्ट इट इज़ क्वाइट वेस्ट, जिधर सनसेट होता है, ओके, वो वेस्ट होती है उसके अपोजिट. और उसके लेफ्ट साइड देखो नॉर्थ है, राइट साइड साउथ है. सो दैट वे लुक हियर. सो हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन? Now the 4 main directions are east, west, north and south. How do we find them? The direction in which the sun rises is the east. The direction in which the sun sets is the west. And जिधर सनराइज होता है वो ईस्ट है और जिधर सनसेट होता है वो वेस्ट है. Now east and west are opposite to each other. If we stand facing east, the west is behind us. At that time, the north is to our left and the south is to our right. देखो ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, क्योंकि हम अगर ईस्ट की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं तो हमारे पीछे क्या है, वेस्ट है. और उसी टाइम पर ये जो नॉर्थ है ये हमारे लेफ़्ट साइड में आती है और साउथ ये फिर राइट साइड में आती है. यानी चारों डायरेक्शन हमको पता चल गए. हमको क्या करना है? ओनली व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू फेस द राइजिंग सन, मीन्स दैट इज़ ईस्ट. तो वो बाकी के 3 डायरेक्शंस हमको पता चल जाएगी. नाउ लुक हियर, ट्राई दिस एक्टिविटी इन द
open at sunrise. It will help you to understand directions better. अब ये डायरेक्शन को क्लियरली समझने के लिए तुमको ओपन में खड़े रहना है और ईस्ट को फेस करना है. इसके बाद में ऑटोमेटिकली यू विल गेट अदर डायरेक्शंस टू. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. So next point is frame this 22. Now look, a large frame is given below. Your house is at the center of the frame. Center of the frame. Okay. And the frame has a yellow strip on each of the 4 sides for writing the directions. Okay, now अब एक लार्ज फ्रेम लेने का है. इसमें दिया है, देखो, दिस इज द फोटो ऑफ दिस लार्ज फ्रेम. यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर. सी दैट. और ये क्या है, इसमें क्या है, योर हाउस इज एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम. तुम्हारा हाउस इसके सेंटर में, ये फ्रेम के देखो, इन द मिडल ऑफ द फ्रेम. और जो येलो स्ट्रिप्स दिए हैं वो क्या है, डायरेक्शंस है. उसके ऊपर डायरेक्शंस लिखने का है. तुमको पता चल जाएगा फिर कि तुम्हारा हाउस किधर फेस करता है, ईस्ट और वेस्ट है कि साउथ है कि नॉर्थ है. ओके. सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ योर हाउस आल्सो. नाउ लुक हियर इन द फिगर. इन द फ्रेम शो द फॉलोइंग थिंग्स near your house in the right places. अभी तुम्हारे जो घर के आजू बाजू में भी थिंग्स है ना, वो ये डायरेक्शंस के हेल्प से तुम बता सकते हो कि वो कौन कौन से प्लेस पर है एग्जैक्टली. देखो अभी इसमें दिया है नंबर 1 नेबरिंग हाउसेस. अब जो नेबरिंग हाउसेस है तुम्हारे पड़ोस में, जो हाउसेस है वो कौन से डायरेक्शन में, ये तुमको पता चलेगा. Another one is that, and one shop near your house. कोई भी शॉप जो होगा तुम्हारे घर के आजू बाजू, वो कौन से डायरेक्शन में भी तुमको पता चलेगा. Another one is that, one tree, any one tree you take, you will get the direction of that tree also. After that, the road nearby. और तुम्हारे घर के आजू बाजू कोई रोड होगा, वो भी रोड कौन से डायरेक्शन में, वो तुमको पता चलेगा. एंड द बस स्टॉप नियर बाय. और इफ देर इज़ अ बस स्टॉप नियर योर हाउस, दैट विल बी आल्सो नोन बाय दिस डायरेक्शन. ओके. तो डायरेक्शन के कारण ही तुमको ये बस स्टॉप और ये जो आजू बाजू की थिंग्स है ना, एग्जैक्ट उनका लोकेशन तुमको पता चलेगा. दिस इज़ द यूज़ ऑफ द डायरेक्शन. नाउ लुक, नाउ सी व्हाट योर नेबरहुड लुक्स लाइक. अभी तुम्हारा नेबरहुड यानी आजू बाजू का, जो घर के आजू बाजू का जो सराउंडिंग है वो कैसा दिखता है. ओके. अनदर पॉइंट. नाउ डू यू नो, वन क्वेरी इज आस्क्ड दैट वेदर यू नो और नॉट. तुमको ये पता है कि नहीं है. वन पिक्चर ऑफ क्लॉक इज हियर गिवन एंड सी दैट व्हाट इज अदर थिंग. द सन राइजेज एंड सेट्स एवरी डे. दैट इज़ वाई द सन इज यूज्ड टू डिटरमिन डायरेक्शंस. अभी देखो, ये जो सनराइज और सनसेट एवरीडे होता है, इसी कारण ये जो डायरेक्शंस जो हमको दिखते हैं ना, उसका पता चलता है कौन सा डायरेक्शन किधर है. नंबर 2, द मैग्नेटिक नीडल इन अ कंपास ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. आस्क योर टीचर और पेरेंट्स टू शो इट टू यू. अभी जो मैग्नेटिक नीडल है कंपास में, जो इधर ये कंपास है, ये जो पिक्चर है, इट इज़ कॉल्ड द कंपास. और इसका जो नीडल है ना, वो नॉर्थ और साउथ ये डायरेक्शन बताता है ऑलवेज. ये मैग्नेटिक नीडल है. ओके. नाउ लिसन, व्हाट्स द सोल्यूशन. नाउ वन डायग्राम इज गिवन हियर. ओके. व्हाट इज देयर इन द डायग्राम, यू कैन सी इन द पिक्चर क्लियरली. व्हाट इज देयर हियर, इट्स map of the actually in your near your house or near your school. Now look here,
This is the main road, okay? And the west and east is written here. Upside west is written and below side east is written. To the left of that middle road, what is written? The name of a girl, Sarah. And to the right side, a triangle, that green color triangle is drawn, and it is written ice cream shop. Means these are the icons, these are the symbols for the things where these things are located. We can just get to know about them through these symbols. Now look here, bus stop, okay, and bus stop is shown by the red circle here, and that point, black point is given, and it is written Amir. This is the name of a boy, Amir. So he is standing there, Sarah is standing here, that black points are shown. Now look here, what is given. Now Sai and Abhay have been asked to solve this problem. Can you help them? अभी अभय और सई नाम के जो स्टूडेंट है, इन लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया है. क्या तुम हेल्प कर सकते हो इसमें? देखो, इन दिस पिक्चर द ईस्ट इज मार्क. यूज दैट टू राइट द अदर 3 डायरेक्शंस इन द येलो बॉक्सेस. ये पिक्चर में क्या किया है, ईस्ट को तो मार्क किया गया है, उसको लिखा गया है, बाकी के डायरेक्शंस लिखा ही नहीं है. ये तुमको उसके इस पर से लिखना है कि ईस्ट जब इस साइड में है तो बाकी के डायरेक्शंस किधर होगी. करेक्ट? तो येलो बॉक्स में तुमको लिखना है. नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन डू वी ट्रैवल टू गो फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप टू द बस स्टॉप. अभी हमको किस डायरेक्शन में जाना है? हमको जाने का है बस स्टॉप पर. आइसक्रीम शॉप से बस स्टॉप पे जाने का, तो कौन सी डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन से किधर, कौन सी डायरेक्शन में. करेक्ट? वो तुमको सॉल्व करने का है. नंबर सी, अनदर सी, आमिर वॉन्ट्स टू गो टू द आइसक्रीम शॉप, इन विच डायरेक्शन मस्ट ही वॉक. अब आमिर को भी जाने का है आइसक्रीम शॉप, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा. नेक्स्ट, सारा वॉन्ट्स टू गो टू द बस स्टॉप, इन विच डायरेक्शन मस्ट शी गो. सारा को भी बस स्टॉप जाना है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी. तो ये डायरेक्शन तुम लोगों को बताने का. दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो यूजिंग द कलरफुल पेंसिल्स एंड जस्ट आंसर टू दिस queries given below. Now look here, let's play a game. Determine the east with respect to your place. What are the things situated in each of the directions? Now move around in a circle. When the group leader names a direction, quickly stand facing that direction. Those who are wrong are out. Now एक गेम है, तुम लोगों को ईस्ट को डिटरमिन करने का है, ये करने का है कि ये ईस्ट साइड है. ओके, क्योंकि तुम्हारे प्लेस से ही तुमको पता करने का है कि ईस्ट कौन सा है. क्योंकि ईस्ट तुमने अगर पता कर लिया तो बाकी की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो. और उसके बाद में तुमको क्या करने का है, तुमको सर्कल में मूव करने का है. ओके, एंड तुम्हारा ग्रुप लीडर जब तुम मूव करेंगे वो एक सर्कल में, सर्कल ड्रॉ किया जाएगा और उस सर्कल में ऐसे तुमको मूव करना पड़ेगा स्लोली. और ये जो ग्रुप लीडर है वो डायरेक्शन से नाम लेगा. जैसे वो डायरेक्शन नाम लेगा तुमको वो डायरेक्शन के इधर मूव करके खड़े रहने का है, फेस करके खड़े रहने का है. राइट? और अगर तुमने उसको रॉन्ग बता दिया तो तुम क्या हो जाएंगे, आउट हो जाओगे. करेक्ट? सो इजंट इट एन इंटरेस्टिंग गेम. इंटरेस्टिंग गेम है कि नहीं है, ये तुमको करने का है. ओके, सी दैट नाउ अप टू हियर आई गेव यू दिस. नाउ आई वांट टू टेल यू दैट द होमवर्क. ओके, दिस इज योर होमवर्क टू बी ड्रॉन, दिस diagram to be drawn with the help of colorful pencils and these questions to be solved. Okay, and this point to be written. Look here, what is the point? Do you know? This diagram to be drawn again, that compass. Okay, the diagram of compass, and this information is to be written. So that way you have to do your homework and send it on my number.